welcoming class 10 students in the offline class, and to your friends, those who are not present over here, in the e-learning class of St. Michael's Academy. Now, in this class, I am going to take two important theorems, one that converges on Thales theorem and one theorem that is related to tangent. So the two theorem I have explained earlier, Thales theorem and Pythagoras, plus these two theorem which I have mentioned. Only these four theorem you have to practice, and you will make yourself that your 4-mark questions is sure short questions for your board examinations. Without wasting the time, now coming to the converse of Thales theorem. Whenever you discuss about converse of any topic, what does it mean? Especially in geometry. Thales theorems, what is the condition of Thales theorem? There is only one condition of Thales theorem. What is the condition? Condition. What is the condition of Thales theorem? Raise your hand and speak. Raise your hand and speak. A line drawn parallel to one side of a triangle. This is the only condition. A line drawn parallel to one side of a triangle. This thing is given. What you have to prove? The other two sides are in equal ratio by this intersecting point of that parallel line. अब जो हमको प्रूव करना था बच्चों कि रेशियो इक्वल रेशियो में होगा, वो क्या हो जाएगा? कंडीशन गिवन हो जाएगा कि if we draw a line and that divide the two sides of a triangle in equal ratio, then that line is parallel to the third line. Very good. तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे? If a line divides the two sides of a triangle in equal ratio, it is parallel to the third side. Okay. अब इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे पहले. You have given a triangle. What we have given here? A triangle ABC, AD upon BC is equal to AD upon BC. Then we have to prove DE parallel to BC. Here in this theorem we have to use contradictory logic. इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था. Contradictory logic मतलब जो हमको प्रूफ करना है, ये चीज DE parallel to BC, हम उसके कॉन्ट्राडिक्ट में मतलब उसके अपोजिट में हम किसी चीज को एज्यूम करेंगे. दिया है पैरेलल है, हम क्या मानेंगे? पैरेलल नहीं है. हम क्या मान लेंगे? को पैरेलल नहीं है. अगर वो पैरेलल नहीं है तो फिर हम कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे और कंडीशन को मेंशन करेंगे. उस कंडीशन से हमको प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने माना था वो गलत है, यानी कि जो दिया गया है वो सही है. तो हम कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे let DE is not parallel to BC. Draw DF parallel to BC. अब यहां से हम एक लाइन ले लिया DF parallel to BC. ठीक है. अगर ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम का कंडीशन अपने आप हमको रिजल्ट में मिल गया बच्चों, मिला ना? अब देखिए प्रूफ. AD upon BB is equal to AF upon FC. ये हो जाएगा हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से. हो गया. लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि AD अपॉन DB किसके बराबर है बच्चों?
AE upon AC. AE upon AC. It is given. Equation number 1, equation number. If left hand sides are equal, automatically this right hand side will be Equal. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? AF upon FC is equal to AE upon DC. हमको मिला from 1 and 2. हो गया? तो कोरोलरीली जैसे हम फाइंड आउट करते थे, इन दोनों में क्या ऐड कर देंगे हम लोग? 1 ऐड कर देंगे दोनों तरफ। क्या हो जाएगा हमारा? AF upon FC plus 1 is equal to AE upon EC plus 1. LCM यहाँ क्या होगा बच्चों? FC. FC हो गया। AF plus FC. FC यहाँ हो जाएगा EC AE plus EC। अब फिगर में देखिए AF और FC मिलकर क्या हुआ? AC। वेरी गुड। ये हो गया हमारा AC अपॉन FC। AE प्लस EC क्या हो गया? AC अपॉन EC। अब देखिए दोनों में न्यूमरेटर इक्वल है तो रिमूव हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट? FC is equal to EC. FC is equal to EC। अब ये जो रिजल्ट मिला इसको हम लोग अब ये फाइंड आउट करेंगे कि ये कंडीशन हमारे लिए जो आया है वो मैथ्स के रूल्स रेगुलेशंस कॉन्सेप्ट लॉ के अनुसार सही है कि नहीं है। अब देखिए FC और EC में दोनों एंड पॉइंट क्या है? C है। EC and FC आर लाइन सेगमेंट। तो कैन वी इमेजिन हियर इज एंड पॉइंट C, यहां पर वो E है और यहां पर हमारा F है, और कंडीशन क्या है? ये CEF आर कोलिनियर। CEF आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर वो पॉइंट स्थित है। दिस ऑल थ्री पॉइंट्स आर लाइज ऑन ए सिंगल लाइन एंड हैविंग वन एंड पॉइंट। तो इन दिस कंडीशन वो कभी भी इक्वल लेंथ में हो नहीं सकता है। नॉन कोलिनियर रहेगा तो हो सकता है, मान लीजिए C यहां है, E यहां आ गया और F यहां आ गया, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गए? नॉन कोलिनियर हो गए। इस कंडीशन में CE और CF हमारा इक्वल होगा, लेकिन इस कंडीशन में CE हमारा CF के इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा बच्चों। यहां क्या लिखेंगे? सिंस CEF आर कोलिनियर मतलब एक लाइन पर है एंड C इज वन एंड पॉइंट, तो CE नेवर इक्वल टू CF। CE नेवर इक्वल टू CF, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्टरी लॉजिक लेकर हम चले थे उसे क्या मैथ्स के रूल्स हमको क्या निकला कि जो हमने माना था वो गलत है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर एजम्पशन। ये याद कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो याद करके लिख दीजिएगा। सो DE इज पैरेलल टू BC। D क्या हो गया हमारा? पैरेलल के BC। इसमें कोई डाउट आपको? कोई डाउट आपको? चलिए तुरंत हम नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं, और ये थ्योरम बहुत ही आसान है टेंजेंट से। वो थ्योरम क्या कहता है आपको? tangents drawn from pair of tangents। सॉरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, pair of tangents drawn from an external point are equal, बराबर होते। ये बहुत ही आसान है। अभी जो तीन थ्योरम हम लोग पढ़े हैं सबसे आसान यही है।
Suppose you have given a circle whose center is O and radius is R. यहां पर आपको लिखना पड़ेगा given in circle center is O and radius is R. AB and AC are tangents. वो tangents हो गए. हमको क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है बच्चों? To prove क्या प्रूव करना है? AB is equal to AC. AB is equal to AC. AC. Construction. Join OA and OB. OA, OB and OC. OB, OC and OB. थ्योरम 1 आपका क्या कहता है टेंजेंट से रिलेटेड? व्हाट डज द थ्योरम 1 सेज? बोलिए. Tangent goes from a radius as perpendicular to it. पूरा स्टेटमेंट बोला. The radius of a circle is perpendicular to its tangent. एक टर्म आपको छोड़ रहा है. The radius of the circle drawn from an external point is perpendicular at the point of contact. Radius is perpendicular on tangent at point of contact. Radius is perpendicular on tangent कहाँ पर? At the At point point of contact. ये थ्योरम 1 कहता है. उसी का हम हेल्प लेंगे इसमें, इसलिए मैं उसका रिवीजन किया. तो ये दोनों हमारा क्या हो गया? B is the point of contact of this tangent, perpendicular. C is point of contact, it is 90 degree. अब देखिए proof in triangle OBA and triangle OCA. तीन फैक्ट हमारे पास होने चाहिए. पहला फैक्ट बोलिए कोई भी गर्ल्स, लड़कियों को. पहला फैक्ट क्या है? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए. व्हाट इज द फर्स्ट फैक्ट? हाँ, OB is equal to OC, radius of a circle. वेरी गुड. OB is equal to OC because it is radius of the circle. Second, AO is equal to AO common. very good. OA is equal to OA because it is common. Third one, 90 degree on angle B or angle C. very good. Angle B is equal to angle C is equal to 90 degree from theorem 1. लेकिन आप theorem 1 को यहाँ मेंशन करोगे. क्या लिखोगे? Radius is perpendicular on tangent at point of contact. Now, you can write here triangle OBA is congruent to triangle OCA because of RHS. If they are congruent, their corresponding sides are equal. Very good. So we can write here AB is equal to AC. CP. चलो we will go very good. CP यानी कि तो बच्चों ये चार थ्योरम मैंने जो आपको हम लोगों ने आपस में डिस्कस किए, मैंने एक्सप्लेन किया. प्लीज प्रैक्टिस स्पेशली टू दोज स्टूडेंट्स दोज आर फाइंडिंग दिस मैथ सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट और जिनको थोड़ा सा परेशान करता है और जिनको आगे मैथ्स लेने में दिक्कत है. ये चार थ्योरम जरूर पढ़िए अच्छी तरह से और प्रैक्टिस कीजिए. गॉड ब्लेस यू.